بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بحمزہ کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ عمران کوٹھی سے نکل کر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں وسیم کامن کے صدر سے فوری ملاقات کا ایک پلان موجود تھا۔ وہ اس پلان پر عمل کر کے فوری طور پر مدام جیکی کی ملاقات صدر سے کرا کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ اب واقعی اس چکر سے شدید بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مقامی سیکرٹ سروس کے کارکن سارے شہر میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، لیکن کارڈیل کالونی شہر کے مضافات میں تھی اور اسے یقین تھا کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ صدر سے مدام جیکی کی ملاقات کرا دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے بعد نیویارک یا اس کے ساتھی کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اب یہ صدر اور مدام جیکی کا سر درد ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ ایسی باتیں سوچتا ہوا وہ چوک تک پہنچ گیا جہاں ایک پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ وہ اگر چاہتا تو کوٹھی میں موجود فون سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے فون اس لیے پبلک انتخاب کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے کوٹھی کا تعلق تھامسن سے تھا اور تھامسن بہرحال زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس لیے وہ اس کا فون نمبر سامنے نہ لانا چاہتا تھا۔ اس نے فون بوتھ میں پڑی ہوئی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اسے کھول کر اس میں سے وسیم کامن کے معروف سائنسدان ڈاکٹر فیگل کا فون نمبر تلاش کرنے لگا۔ ڈاکٹر فیگل بین الاقوامی شہرت کے سائنسدان تھے اور پاکیشیا کے سائنسدان سرداور سے ان کے تعلقات بےحد قریبی تھے، اور کئی بار سرداور کی وجہ سے ڈاکٹر فیگل سے عمران کی ملاقات ہو چکی تھی، اور سرداور کی وجہ سے ڈاکٹر فیگل اسے اچھی طرح واقف بھی تھے۔ عمران نے یہی پلان بنایا تھا کہ ڈاکٹر فیگل کے ذریعے وہ مدام جیکی اور صدر کی ملاقات کرا دے گا، کیونکہ ظاہر ہے پروٹوکول کی وجہ سے اس کی ویسے تو صدر مملکت سے براہ راست فوری ملاقات ناممکن تھی، یا پھر دوسرا راستہ خاصا طویل تھا کہ وہ پہلے بلیک زیرو کو کہتا کہ وہ بطور ایکسٹو پاکیشیا کے صدر سے بات کرے اور پاکیشیا کا صدر ویسٹرن کامن کے صدر سے بات کرے اور پھر عمران کی ملاقات ہو۔ اس طرح الجھنیں بھی بڑھ جاتی کیونکہ پاکیشیا کے صدر لازماً اصل حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ ڈاکٹر فیگل والا معاملہ شارٹ کٹ تھا، بشرطیکہ کہ ان کا نمبر بھی مل جائے اور وہ خود بھی فون پر مل جائیں۔ لیکن چند لمحوں بعد اس نے ڈاکٹر فیگل کا نمبر تلاش کر لیا۔ یہ ان کی رہائش گاہ کا نمبر تھا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر فون پیس میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، لیکن عمران آواز پہچانتا تھا، یہ ڈاکٹر فیگل کی آواز نہ تھی۔ ڈاکٹر فیگل صاحب سے بات کرا دیں، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی ریسیور پر ڈاکٹر فیگل کی آواز ابھری۔ ہیلو ڈاکٹر فیگل اٹینڈنگ۔ ڈاکٹر فیگل کی لہجے میں قدرے حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ اب پرندے بھی ڈاکٹر بننے لگ گئے ہیں، کمال ہے، واقعی انقلاب ہے زمانے کے۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، پرندے کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر فیگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، فیگل نہیں، سیگل۔ سیگل پرندے کا ہی نام ہوتا ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، سفید رنگ کا۔ ارے ہاں، واقعی ڈاکٹروں کا کوٹ بھی تو سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ واہ، واقعی سیگل تو بنا بنایا ڈاکٹر ہوا۔ عمران کی زبان چل پڑی، کیا بکواس ہے، میرا نام سیگل نہیں فیگل ہے، ڈاکٹر فیگل۔ اس بار ڈاکٹر فیگل نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے جلدی سے اپنا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر فیگل نے جس جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا اس سے عمران کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ ریسیور رکھ دیا تھا۔ علی عمران، اوہ اچھا، اوہ یہ تم ہو نوٹی بوائے، میں بھی چکرا گیا تھا کہ یہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس بار ڈاکٹر فیگل نے ہنستے ہوئے بے تکلفانہ انداز میں کہا، شکر ہے کہ آپ نے پہچان لیا، ورنہ مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جب آپ میری آواز نہیں پہچان سکے تو شاید نام پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ اوہ، مجھے شک تو پڑا تھا، لیکن تمہاری کال اس قدر غیر متوقع تھی کہ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ کیسی کال کی ہے؟ ڈاکٹر فیگل نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا نمبر ڈائریکٹری میں دیکھا، فون پیس میں سکے ڈالے اور ریسیور اٹھا لیا، نمبر گھمائے اور کال ہو گئی۔ عمران نے شرارت بھرے انداز میں جواب دیا اور ڈاکٹر فیگل ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے، تم واقعی نوٹی بوائے ہو، لیکن میں انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں، صرف پاکیشیا کا سن کر میں نے کال اٹینڈ کر لی ہے، ورنہ شاید میں کال اٹینڈ ہی نہ کرتا۔
मैंने भी इसीलिए पाकेशिया का नाम लिया था, क्योंकि साइंसदान और टैक्सी ड्राइवर एक ही तरह डील करते हैं। साइंसदानों की सोच लंबी होती है और टैक्सी ड्राइवरों को लंबी सवारी की जरूरत होती है। इमरान ने कहा, ओह, तो क्या तुम पाकेशिया से नहीं बोल रहे? कहाँ से बोल रहे हो? फोन के माउथ पीस से इमरान ने फौरन ही जवाब दिया और डॉक्टर फिगल एक बार फिर हंस पड़े। ओके अली इमरान, वाकई मेरे पास बहुत वक्त कम है, वरना मैं तुम्हारी दिलचस्प बातों से जरूर महजूज होता। इसलिए डॉक्टर फेगल ने कहना शुरू किया, अरे अरे डॉक्टर फेगल, प्लीज फोन बंद ना कीजिए, मेरे पास तो मजीद सिक्के भी नहीं हैं, और यहाँ वेस्टर्न कामिल में तो एक फोन करने के लिए एक बोरी सिक्के चाहिए। इमरान ने इनका फिक्रा काटते हुए कहा, चलो एक बात का तो पता चला कि तुम वेस्टर्न कामिल से बात कर रहे हो, तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है? यहीं मेरी रिहाइशगाह पर आ जाओ। नहीं डॉक्टर फेगल, अब मैं आपकी तरह फारिग तो नहीं हूँ, मेरे पास वक्त की बेहद कमी है, और रिहाइशगाह पर आने के लिए पहले मुझे टैक्सी के इंतजार में सूखना पड़ेगा, फिर आपके दरबान को सलाम करना होगा। सॉरी डॉक्टर, फोन ही ठीक है, इमरान ने कहा, और डॉक्टर फेगल इस अंदाज में हंसे जैसे बेबसी और बेचारगी के आलम में हंस रहे हो। भाई, तुमसे बातों में जीता नहीं जा सकता, ना तुम कॉल का मकसद बताते हो और ना फोन बंद करने देते हो। डॉक्टर फेगल ने कहा, आपने पहले मकसद पूछा ही कब है? अब पूछा है तो बता देता हूँ कि मैंने एक मोहतरमा को वेस्टर्न कामिल के सदर से फौरी तौर पर मिलवाना है। क्या आप इसकी मुलाकात का बंदोबस्त कर सकते हैं? इमरान ने कहा, देखो अली इमरान, मजाक की भी एक हद होती है, मैं इस किस्म के मजाक का हरगिज आदी नहीं हूँ। अरे अरे डॉक्टर फेगल, आप गलत ना समझें, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात कर रहा हूँ, और ये मुलाकात वेस्टर्न कामिल के फायदे में ही है। चलिए मैं आपको मुख्तसर सा पस मंजर बता देता हूँ ताकि आप मजीद नाराज ना हो जाएं। बोलीविया में एक ऐसी धात मिली है जो बाकी पूरी दुनिया में नायाब है, और इससे इंतहाई खतरनाक असलाह तैयार हो सकता है। इस धात को शायद एक्रेमिया ने तलाश किया, चुनांचे इन्होंने इसे खुफिया रखा और अपने एजेंटों के जरिए बोलीविया में ही एक खुफिया लेबोरेटरी कायम कर ली, जिसमें हथियार तैयार होकर एक्रेमिया पहुंचेंगे। शायद ये धात की कोई खसूसियत होगी कि उसे यहाँ से बाहर ना ले जाया जा सकता होगा। रूसिया वालों को भी इसकी खबर हो गई, लेकिन बावजूद कोशिश के वो इस लेबोरेटरी को ना तलाश कर सके। चुनांचे इन्होंने यहाँ की मुकामी सीक्रेट सर्विस के चीफ मियोर को आलाकार बना लिया। ये चीफ साहब वजीर आजम के रिश्तेदार भी हैं। चीफ साहब ने एक और मुजरिम तंजीम को एक्रेमियन एजेंट के मुकाबले पर लाकर एक साजिश की, जिससे मेरी एक साथी लड़की ख्वामखा फंस गई और मुझे इसकी वजह से यहाँ आना पड़ा। फिर हालात बदल गए, एक्रेमियन एजेंट मारा गया। इसकी लड़की का नाम मादाम जैकी है, वो मुहिब्बे वतन है। वो एक्रेमियन और रूसिया की बजाय इस धात को वेस्टर्न कामिल के दिफा के लिए इस्तेमाल किए जाने की ख्वाहिशमंद है। इस पर एक्रेमिया और रूसिया दोनों के एजेंट इसके खिलाफ हो गए। वो इस लेबोरेटरी का राज जानती है। एक्रेमियन एजेंट उसे मारना चाहते हैं ताकि लेबोरेटरी का राज किसी को मालूम ना हो सके, और रूसिया ही एजेंट उसे पकड़कर उससे राज उगलवाना चाहते हैं ताकि राज इससे हासिल करके रूसिया इस लेबोरेटरी पर कब्जा हासिल कर ले। मैं उसे इन दोनों से बचाकर ले आया हूँ। वो अब ये राज बराह रास्त सदर के हवाले करना चाहती है। इसने मुझ पर भी एतमाद नहीं किया, और चूंकि रूसियाई एजेंट और मकामी सीक्रेट सर्विस का चीफ मियोर वजीर आजम साहब का रिश्तेदार है, इसलिए वो लड़की मादाम जैकी इस सिलसिले में वजीर आजम पर भी एतमाद नहीं कर रही। इस पर मुझे आपका ख्याल आया कि शायद आप इस लड़की की सदर से फौरी मुलाकात का बंदोबस्त कर सकें। बंदोबस्त तो मैं दूसरे जराये से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एक लम्हा कीमती है। अब आप फरमाएं, आपका क्या जवाब है? इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदगी से पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये तो इंतहाई सीरियस मसला है। ठीक है, तुम इस लड़की को लेकर मेरी रिहाइशगाह पर आ जाओ। मैं इस दौरान सदर मुमलिकत से बात करके फौरी तौर पर इनकी मुलाकात का वक्त ले लेता हूँ, और फिर मैं खुद साथ जाकर ये मुलाकात कराऊंगा। डॉक्टर फीगल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, आप फौरी मुलाकात की कोशिश करें, मैं इस लड़की को लेकर आ रहा हूँ। खुदा हाफिज, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर वो एक तवील सांस लेता हुआ फोन बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसे यकीन था कि डॉक्टर फीगल ये मुलाकात करा देंगे, और अगर फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन ना भी हो सका तभी मादाम जैकी डॉक्टर फीगल के पास ज्यादा महफूज तौर पर रह सकेगी, और वो मुतमईन होकर वापस चला जाएगा। फोन बूथ से निकलकर वो इसी तरह पैदल चलता हुआ वापस कोठी की तरफ बढ़ गया। कोठी के गेट पर पहुंचकर इसने कॉल बेल के बटन को 2 बार प्रेस किया और फिर फाटक खुलने का इंतजार करने लगा। इसी लम्हे एक कार तेजी से दौड़ती हुई करीब आई और फिर फाटक के सामने रुक गई। इमरान ने चौंक कर देखा तो ड्राइविंग सीट पर वही थॉमसन बैठा हुआ था जो इन्हें यहाँ छोड़ गया था। इसने इमरान को देखकर सर हिलाया और फिर 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया, लेकिन फाटक वैसे ही बंद रहा। तो इमरान चौंक पड़ा। इसने आगे बढ़कर साइड फाटक पर दबाव डाला तो साइड फाटक खुलता चला गया। अरे ये क्या? इमरान ने हैरान होकर कहा और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे इसने नाक सकोड़ा क्योंकि उसे इमारत में नामानूस सी बू फैली हुई महसूस हो रही थी।
बादाम कहाँ है मिस्टर? थॉमसन इस दौरान कार से उतरकर फाटक के अंदर आ चुका था। बादाम? वो किसी करियाना फरोश की दुकान पर मिलेंगे। मैं बादाम जैकी के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने क्या चक्कर चला रखा है? थॉमसन ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। इसमें इतना गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? मैं भी तुम्हारे सामने बाहर से आ रहा हूँ। इमरान को भी शायद इसके तर्ज गुफ्तगू पर गुस्सा आ गया था। थॉमसन ने हंकारा भरते हुए कहा और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। इमरान भी इसके पीछे था, लेकिन कोठी पर छाया हुआ पुरस्कार सकूत और वहां फैली हुई नामानूस बू ने इसकी न सिर्फ छठी हिस्स को खतरे की घंटी बल्कि सायरन बजाने पर मजबूर कर दिया था। ओह ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। बताओ कहाँ है मादाम जैकी? थॉमसन ने एकलख जेब से रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर तानते हुए कहा। इसके लहजे से शोले निकल रहे थे। ये कहाँ चले गए हैं? ओह, ये क्या है? इमरान ने इसे उससे और रिवॉल्वर की परवाह किए बगैर इधर उधर हैरत भरे अंदाज में देखते हुए कहा, और इसी लम्हे इसकी नजरें बरामदे के कोने में पड़े हुए एक सुर्ख रंग के बड़े से कैप्सूल पर पड़ी जो टूट कर फर्श पर बिखरा हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर इसका एक हिस्सा उठाया और इसे नाक के करीब ले जाकर सूंघा गया। ओह, तो इन्हें बेहोश करके ले जाया गया है? इमरान ने होंठ भिगते हुए कहा। किनकी बात कर रहे हो? देखो, शराफत से बता दो कि तुमने मादाम जैकी को कहाँ भेज दिया है, वरना मैं गोलियों से भून डालूंगा। थॉमसन अभी तक इमरान पर ही शक किए जा रहा था। खामोश रहो। मादाम के साथ मेरे साथी भी गायब हैं और तुम्हारा आदमी भी मौजूद नहीं है। मैं टेलीफोन करने चौक तक गया था, जाते वक्त इन्हें यहीं छोड़ गया था और अब वापस आया हूँ तो ये गायब हैं। इमरान ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। बकवास, तुम ड्रामा कर रहे हो। बताओ। थॉमसन और ज्यादा बिगड़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। इमरान का जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। अब अगर कोई ऐसी बात की तो हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? बता तो रहा हूँ कि मुझे खुद मालूम नहीं है, इमरान ने बुराते हुए कहा और फिर तेजी से एक तरफ रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। इसने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेजी से डॉक्टर फिगल के नंबर डायल करने लगा। यस, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर फिगल से फौरन बात कराएं। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। इस दौरान थॉमसन उठकर अपना रिवॉल्वर उठा चुका था, लेकिन इमरान के मुंह से डॉक्टर फिगल का नाम सुनकर वो भी ठिठक गया था, क्योंकि डॉक्टर फिगल का नाम वेस्टर्न कॉमन में इतना मशहूर था कि वो भी इससे वाकिफ था, और जाहिर है कि डॉक्टर फिगल वेस्टर्न कॉमन का मौजूद तरीन आदमी था। हेलो, डॉक्टर फिगल स्पीकिंग। अली इमरान बोल रहा हूँ डॉक्टर। ओ इमरान, तुम अभी तक आए नहीं? मैंने सदर मुल्क से बात कर ली है, वो हमारे मुंतजिर हैं। मैंने इसीलिए तो फोन किया है। मैं आपको फोन करके वापस इस कोठी में पहुंचा हूँ जहाँ मादाम जैकी और मेरे साथी मौजूद थे, लेकिन यहाँ से सब लोग गायब हो चुके हैं। मेरे ख्याल में मेरे आपके फोन करने के वक्फे में दुश्मन इन्हें बेहोश करके अगवा कर ले गए हैं। आप सदर मुमलिकत से फिलहाल माजरत कर लें, मैं इन्हें तलाश करता हूँ और बाद में खुद ही फोन कर लूंगा। खुदा हाफिज, इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया। ओह, क्या वाकई मादाम जैकी को अगवा कर लिया गया है? इस बार थॉमसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और साथ ही मेरे साथी भी अगवा हुए हैं, लेकिन तुम ताउन करने के बजाय उल्टा मेरे गले पड़ रहे हो, इमरान ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। इमरान को जूलिया और सफदर समेत मादाम जैकी के इस तरह अगवा किए जाने पर खासा शौक पहुंचा था, और इस तरह डॉक्टर फिगल के सामने भी इसका वकार मजरूह हुआ था। लेकिन किसने यहाँ से इन्हें अगवा किया है? इस अड्डे को तो सिवाय मेरे और रॉजर के और कोई नहीं जानता था, थॉमसन ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं चौक पर ही था। इस दौरान अगवा करने वालों ने पहले ये बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल अंदर फेंके हैं और फिर इन्हें बेहोश करके अगवा कर गए हैं, वरना दूसरी सूरत में फायरिंग वगैरह की आवाज मुझ तक लाजिम पहुंच गई होती। बहरहाल अब हमें इन्हें फौरी तौर पर तलाश करना है, क्योंकि वो मादाम जैकी को देखते ही गोली मार देने पर तुले हुए हैं, इमरान ने कहा। लेकिन अब इन्हें कहाँ ढूंढें? मेरे आदमियों ने सारा शहर छान मारा है, लेकिन अब तक वो इन लोगों का मामूली सा सुराग भी हासिल नहीं कर सके। मैं इसीलिए यहाँ आया था ताकि मादाम जैकी से मजीद मालूमात हासिल करके इन्हें नए सिरे से तलाश करूं, थॉमसन ने होंठ चबाते हुए कहा। सुर्ख रंग की एक कार तो मेरे सामने से गुजरी है, भड़कते हुए सुर्ख रंग की। आमतौर पर कार कलर में ये रंग इस्तेमाल नहीं होता, अगर सुर्ख रंग होता भी है तो डल रेड होता है, इसलिए मेरे शौर में ये कार रह गई है, वरना तो बेशुमार कारें वहां से गुजरी होंगी, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो जहन पर पूरा जोर देकर याद कर रहा हो। भड़कता हुआ सुर्ख रंग, ओह ओह, ये तो कोरों की मखसूस कार का रंग है। बिल्कुल, ओह वेरी सैड। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि कोरो भी इस अड्डे से वाकिफ है, एक बार वो मेरे साथ यहाँ आया था। बिल्कुल वही होगा, वो एक्रेमी नजात है, थॉमसन ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। कोरो कौन है वो? इमरान ने भी चौंकते हुए पूछा। वो एक इंतहाई खतरनाक मुजरिम ग्रुप का चीफ है, ये पेशेवर कातिलों का ग्रुप है और सेक्शन 3 कहलाता है। मेरा दोस्त है वो कोरो। भड़कते हुए सुर्ख रंग की कार इसी की है, थॉमसन ने जल्दी से जवाब दिया। ओह,
اس کا اڈا کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اس کا اڈا ایک پرانی سی خستہ عمارت ہے جس پر کلب کا پرانا سا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ عمارت، آؤ میرے ساتھ، تھامسن نے کہا۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ اس کے اپنے پاس سوائے ایک چھوٹے پستل کے اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اسلحہ؟ اوہ، اس کوٹھی میں اسلحہ موجود ہے، آؤ، تھامسن نے کہا، اور پھر وہ عمران کو لے کر ایک خفیہ تہخانے میں پہنچ گیا۔ وہاں واقعی ہر قسم کا اسلحہ کثیر تعداد میں موجود تھا۔ عمران نے وہاں سے چند دستی بم، ایک سائلنسر لگا مشین پستل اور ایک مشین گن اٹھا لی۔ تھامسن نے بھی ایک مشین گن اور اسلحہ لیا، اور پھر عمران تھامسن کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس طرف بڑھ گیا جہاں اسکورو یا سیکشن 3 کا اڈا تھا۔ عمران کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی یقین ہی نہ کر سکتا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جس کے چہرے اور منہ سے ہر وقت پھلجھڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں۔